ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪਬ ਕਲਾਸਿਸ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10/7/2022 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟ 3 ਆ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਆਲਰੇਡੀ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 100 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ 50 ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ। ਸੋ 101 ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? 101 ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, क्वेश्चन पढ़ के देखो की कह रहा है क्वेश्चन। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट इंडेक्स इन अ केस ऑफ कैलकुलेटिंग द कैपिटल बस्टिंग। हाँ जी कहते कि फॉर्मूला वा ਇਹਦਾ। सो 101 का ਜਿਹੜਾ एग्जैक्ट आंसर है वो की है बी। क्लीयर? बी प्रॉफिट इंडेक्स का फॉर्मूला की है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनिशियल कैश आउटफ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन working capital which is required to meet the existence such as launching of a extensive marketing campaigning for conducting the research etc is called। हाँ जी ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕੈਪੀਟਲ। ਨੈਕਸਟ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਆਨਸਰ ਕੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਬਣਨਗੇ। ਬਟ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, क्वेश्चनस ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਦੈਨ ਐਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਇਰ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਅ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਇਰ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨ ਅ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਡੈਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਲੋਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ प्रॉफिटेबिलिटी है हाई होंगी है क्योंकि प्रोडक्टिविटी हेल्प करते। सो करेक्ट आंसर इज ए। नैक्सट एस्टिमेट ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैन बी मेड बाय हाँ जी परसेंटेज सेल मैथड, ऑपरेशन सेल्स साइकिल मैथड, रिग्रेशन एंड एनालिसिस मैथड। सो 104 का जो करेक्ट आंसर है वो की है डी। क्लीयर? नैक्सट क्वेश्चन डैश इज अ ट्रांसफर ऑफ द लीगल एंड इक्विटेबल इंटरेस्ट इन अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी for the payment of the debts। so ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ correct answer ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ mortgage is a transfer of the legal equipment interest in a specific immovable property of the payment of the debt। so correct answer is A। next question the cost of the capital is the minimum rate of return which a firm required as a conditions for undertaking the investment। this definition is given by हाँ जी this definition is given by मिल्टन एच स्पेंसर ने ये डेफिनेशन दी थी। सो करेक्ट आंसर किया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन ऑफ कोर्स कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन कैश बेसिस। सो करेक्ट आंसर इज सॉरी बी। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइल प्रिपेयरिंग द फंड फ्लो स्टेटमेंट डैश आर कंसीडर्स। हाँ जी वाइल प्रिपेयरिंग द फंड फ्लो statement so we are considering the capital items। next question responsibility accounting। I think a question next page पे भी होगा। yes responsibility accounting is a name given to that aspect of the managerial process dealing with the reporting of the information to facilitate the control of operation and evaluation of the performance। this definition is given by चार्ल्स टी हॉर्नगन। क्लियर? सो the correct answer हो गया सी। which of the following method is the intra company transfer। intra company transfer which of the following। सो ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੈਥਡਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ correct answer ਹੋ ਗਿਆ ਡੀ। next question dash states the both the parties in an insurance contract must provide the clear and concise information। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ clear and concise information ਦੇਣੀ ਆ related to terms and conditions ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੁੰਦਾ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ of at most good faith। next question IRDA very important। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ 4 ਪੇਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ और 4 पेपरों के विच यही क्वेश्चन असीं बहुत डिस्कस किए थे और दस्सिया भी सीगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है यह आउंदे हुंदे। सो इहदा जिहड़ा करैक्ट आंसर हो गया IRDA की जिहड़ी एस्टैबलिशमेंट हुई सी 1999 दे विच हुई सी। क्लीयर? नैक्सट क्वेश्चन
RBI, हाँ जी 113 RBI was founded in, RBI कब फाउंड की गई सी, RBI फाउंड की गई सी 1 अप्रैल 1935 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स गिवन द राइट टू द इंश्योरेंस कंपनी टू क्लेम द अमाउंट ऑफ द लॉस फ्रॉम द थर्ड पार्टी। हाँ जी थर्ड पार्टी के अंदर ये जो प्रिंसीपल है किहड़ा हुंदा, प्रिंसीपल ऑफ सबरोगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 115th क्वेश्चन, हाँ जी द गवर्नमेंट रिसिप्ट विच आर आइदर क्रिएट अ लाइबिलिटी और रिड्यूस द एसेट्स। हाँ जी किहड़ी है जी गवर्नमेंट रिसिप्ट है जिसके अंदर ना तो लाइबिलिटी क्रिएट होंदी है ना ही एसेट्स रिड्यूस होंगे। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज, डी गोल्ड भी, SDR ते फॉरेन करेंसी एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ केस ऑफ अ माइनर एक्टिंग एज अ पार्टनर हिज पर्सनल प्रॉपर्टी आर, हाँ जी वो चाहे जो पार्टनर माइनर है दैन ही इज़ नॉट लेवल टू पे द डेट्स ऑफ द फर्म। सो करेक्ट आंसर इज सी, वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बिकॉज ही इज़ अ माइनर। नेक्स्ट, विच वन इज़ नॉट अ फीचर ऑफ द LLP। हाँ जी LLP का किहड़ा फीचर नहीं गा, पार्टनरशिप शुड बी मैक्सिमम 20 persons। सो 118 का जो करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेक्शन 138, हाँ जी एज पर सेक्शन, मैं आंसर ऑलरेडी दसता है, एज पर सेक्शन 138 of the companies 2013 the certain class of companies are required to appoint a internal auditor। clear। next question, the minimum number of members are required while you are registered a private company। हाँ जी अपन को घट कितने मैंबर चाहिए ने, 2 members। वेरी ईजी क्वेश्चन ईजी होने का मतलब ये है कि थोड़ी जी कट ऑफ लिस्ट है वो बहुत अप जाऊगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन इन द कंपनी आर फॉर्मड अ वन पर्सन, अ कंपनी कैन बी अ इंडिविजुअल भी हो सकता। सो करेक्ट आंसर भी सॉरी बी, करेक्ट आंसर किया बी, इंडिविजुअल पर्सन वन मैन कंपनी, वन पर्सन कंपनी फॉर्म कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनी शैल फिनिश रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन ऑफिस विद इन द पीरियड ऑफ, हाँ जी सो इस क्वेश्चन का किन्ने कहते किन्ने टाइम के आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होंगे, 122 का जो करेक्ट आंसर है वो की है 30 days के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैंबर्स इन अ केस ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। हाँ जी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर मिनीमम दी रिक्वायरमेंट होंगी है, मैक्सिमम दी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होंगी। सो आंसर इज डी। जिन्ने सौखे क्वेश्चन होंगे उन्ना ही कंपीटीशन है जो मतलब कट ऑफ लिस्ट है वो हाई जाती है। अब तुम देखना लास्ट 50 क्वेश्चन बहुत ईजी आए ने, ईवन इकनॉमिक्स के क्वेश्चन भी ईजी सीगे। सो साढ़े अकॉर्डिंग जी कट ऑफ काफ़ी हाई जाऊगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 124, द मिनिमम नंबर ऑफ मैंबर्स आर रिक्वायर्ड टू बी अ प्रेजेंट एट अ मीटिंग इज कॉल्ड अ quorum। सो इसका करेक्ट आंसर किया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट वाउचर्स फॉर द पीरियड ऑफ 8 years, फॉर द पीरियड ऑफ 8 years। क्लियर। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन इज 30.46, मोड इज 32.5। हाँ जी इफ द मीन इज 30.6, 30 मेरा फॉर्मूला होंगे 30.46 माइनस 32.5 डिवाइडेड बाय 8.96, 8.96। सो इसका करेक्ट आंसर की होगा, सो इसका करेक्ट आंसर की होगा, देखो हम कैलकुलेशन करके देखोगे तो थोड़ा इसका करेक्ट आंसर मिल जूगा। जो 30.46 जो 32.5 ਨੂੰ माइनस करोगे डिवाइडेड बाय 8.96। सो बेसिकली ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ मैं इत्थे लिख देना, कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला की होंगे मीन
माइनस मॉड मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस मॉड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो तुसी इहनूं इस फॉर्मूले नूं पुट करके तुसी इहदा आंसर कैलकुलेट कर लोगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮੈਰੀਕਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ 0.228 0.228। ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ 0.228 ਲਾਸਟ ਪਿੱਛੇ -32 ਆ, ਸੋ 0.228 ਮਾਈਨਸ 0.228 ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਔਨ ਸੇਲ ਆਫ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਕਿਊਡ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਅਸੀਂ प्रिपरेशन कर रहे सी ਇਹਦੀ स्पैसीफिक वीडियोज़ बना के भी दस्सिया कि स्क्यूनेस के क्वेश्चन जरूर आते होंगे ने, नैगेटिव स्क्यूज़ और पॉजिटिव स्क्यूज़। सो जो नैगेटिव स्क्यू होंगे तो मेन इज़ लैस दैन द मीडियन, मेन इज़ लैस दैन द मीडियन। और जो इक्वल होंगे तो वो इतने सारे इस पॉइंट पर इक्वल होंगे। नैगेटिव होंगे मेन इज़ लैस दैन द मीडियन, मेन इज़ लैस दैन मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the data is symmetric then skewness is 0। कहते जो symmetric है that means बिल्कुल सही है डाटा, that means कोई skewness नहीं की, that means zero skewness। इतने सारे equal होंगे mean median mode। next question, quota sampling is a part of, हाँ जी 130th question, quota sampling is a part of non probability sampling। next question, while filing questioning, inability of the respondent to the answer of a question is an example of dash error। Dash is response error, so correct answer is C। depreciation on a plant and machine is example of, हाँ जी depreciation आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर करते हैं, सो एक एग्जाम्पल है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following फर्स्ट बैंक ऑफ द इंडिया स्टार्ट, हाँ जी इंटरनेट बैंकिंग सर्विस। कहते कि बैंक ने जी इंटरनेट बैंकिंग सर्विस स्टार्ट की सीगी, सो ये सीगी बच्चे ICICI 132 ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਾਈਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ to start internet banking in India। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ in India ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਬੈਂਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀ ਕਿ ICICI ਨੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ D, ICICI ਨੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਫਰਸਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ D। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, what was the first demonetization take place। हाँ जी demonetization लास्ट होनी हुई है 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। demonetization ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਆ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। next question, which of the following bank brought the ATM concept for the first time in India। हाँ जी ATM ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ HSBC means Hong Kong Shanghai Banking Corporation। next question, which of the following bank is formed a merging the bank। हाँ जी बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे ਤੇ बैंक ऑफ मद्रास ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜੀ ਬੈਂਕ ਬਣੀ ਸੀਗੀ
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नैक्सट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बैंक एस्टैबलिश इन इंडिया। कहते किहड़ी बैंक सी जी फस्ट एस्टैबलिश हुई सी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नैक्सट क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ द पेमेंट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स द मॉनेटरी ट्रांजेक्शनस बिटवीन 38 का जोड़ा करैक्ट आंसर हो गया होगा रेजिडेंट ऑफ द नेशन प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नैक्सट, द मेजरमेंट टेकन टू इंप्रूव द नैगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। हाँ जी, किहड़े स्टैप्स लाए जाते जो नैगेटिव बैलेंस पेमेंट हो जाए, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ट्रेड डेफिसिट इज 1000 करोड़ एंड द इंपोर्ट ऑफ गुड्स 2000 करोड़ दैन द एक्सपोर्ट। हाँ जी, फॉर्मूला की होंगे ट्रेड इक्वल्स टू बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल्स टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। हम अपन एक्सपोर्ट कैलकुलेट करना, दैन ये इधर आ जाऊगा इक्वल्स टू दे इधर आ जाऊगा, दैट मीनस इंपोर्ट अपन गिवन है, इधर आ गया इक्वल्स टू एक्सपोर्ट। सो मैं दोबारा रिपीट कर देना, ट्रेड इक्वल्स टू एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। सो जो अपन इधर ले आवेंगे प्लस हो जाएगा। सो ये आंसर की आ गया 1000, ये नैगेटिव है डेफिसिट है तो माइनस च आ गया, और ये इधर नूं आ जाऊगा, दैन ये प्लस हो जाऊगा इधर आके प्लस 2000। सो तुसी कैलकुलेट कर लोगे कि एक्सपोर्ट कितना बन जाऊगा। सो एक्सपोर्ट कितना बन जाऊगा 1000 करोड़ पॉजिटिव। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉर्पोरेशन सोसाइटी। हाँ जी, कॉर्पोरेशन सोसाइटी एक्ट किहड़ा वा 1912। बहुत ईजी क्वेश्चन है सीगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथड ऑफ द नेशनल इनकम। हाँ जी, तिने ही मैथड ने नेशनल इनकम कैलकुलेट करने दे, ये भी 12th बेस्ड क्वेश्चन सीगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफिशियली इंडियन GDP और नेशनल इनकम आल्सो नोन एज NNP इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर कॉस्ट। NNP नेशनल इनकम की होंगी है NNP-FC। NNP आप इसे लिख देना NNP-FC। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम लेफ्ट विद द पीपल आफ्टर द पेमेंट ऑफ द पर्सनल डायरैक्ट टैक्स। कहते जो आप पर्सनल डायरैक्ट टैक्स भी लैस कर दें, फिर तो पर्सनस को जी इनकम बचती उनको कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ फिक्स्ड एंड अ फ्लैक्सीबल बजट इज दैट अ फिक्स्ड बजट, देखो फिक्स्ड बजट कैन नॉट बी चेंज वेयर एज फ्लैक्सीबल बजट कैन ईजिली चेंज। सो करेक्ट आंसर इज बी। ये क्यों नहीं गए, इज अ कंसर्न विद द फिक्स्ड एक्सपेंसिस वेयर एज फ्लैक्सीबल बजट इज अ कंसर्न विद द डिफरेंट एक्टिविटीज़ लेवल। नहीं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ लेवल नहीं, असल बजट की गल हो रही है। सो आप ईजिली चेंज कर सकते हैं। सो जी करेक्ट डेफिनेशन है वो बी है। 146 रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। किहड़ियां कैटेगरीज होंदियां, कॉस्ट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर। उन्हें पूछा कि नहीं इंक्लूड होंगी, लोन सेंटर नहीं इंक्लूड होंगे। सो इसका करेक्ट आंसर सी डी सी है। कमीशन पेड, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो आए हुए बहुत सारे क्वेश्चन। कमीशन पेड फॉर द परचेज ऑफ लैंड इज स्टैबल्ड टू द कमीशन अकाउंट इंस्टेड ऑफ अ लैंड अकाउंट। सो 147 का करेक्ट आंसर है 147 का करेक्ट आंसर की है एरर ऑफ प्रिंसीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग ट्रायल बैलेंस इज नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ। कहते चाहे अपना ट्रायल बैलेंस मैच भी कर दे, नॉट अ प्रूफ ऑफ द कंप्लीट करेक्टनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट की अपनी बुक्स करेक्ट बनी बिकॉज यस इट ट्रू आ कि आप जे अपने अपना ट्रायल बैलेंस मैच भी कर जाए तो भी आप ये नहीं कह सकते कि साढ़े जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स करेक्ट बनी बिकॉज एक कंपनसेटरी एरर होंगे। इस पेपर के अंदर क्वेश्चन भी आया है, एक कंपनसेटरी एरर होंगे कि कई बार आप एक पासे अमाउंट ज़्यादा पाती दूसरे पासे घट पाती। सो कनकलूड वह की हो जाता वो इक्वल हो जाता। सो वो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो जरूर गलत बने होंगे बट अपना ट्रायल बैलेंस इक्वल कर जाता। सो जो ट्रायल बैलेंस इक्वल कर दी कोई प्रूफ नहीं होंगे कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट जो करेक्ट बने। सो इसका आंसर करेक्ट किया ए। नैक्सट, इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज। हाँ जी, लास्ट वन क्वेश्चन, डेसिबल प्राइस इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड
मैं एक चीज़ थोड़ा क्लीयर कर देना, ये अपना 5th क्वेश्चन पेपर सीगा जिहड़ा कि आपां डिस्कस किया। आने वाले टाइम दे विच आपां होर भी पेपर्स नूं डिस्कस करांगे। सो चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो ताकि आपां लैक्चर प्रिपरेशन दे होर बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करांगे। आने वाले टाइम दे विच डेली असीं सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स नूं ही डिस्कस करते हैं, जिन्ने भी पुराने क्वेश्चन पेपर्स ने तुसीं ऑलरेडी चैनल पर जाके देखोगे असीं 4 ओल्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं, ये 5वां क्वेश्चन पेपर सीगा। सो जे तुसीं अपने लैक्चरां की प्रिपरेशन कंटिन्यू करना चाहुंदे सो चैनल में सबसक्राइब करो। लास्ट क्वेश्चन 150th Despair price index number is also called a Bayesian weighted index। so thank you so much। बट आ क्वेश्चंस रह गए सीगे 71 to 74 क्वेश्चंस, इन्हां नूं भी डिस्कस कर लिया जाए, यही पेपर दे ने लास्ट वीडियो के अंदर रह गए सीगे। 71st क्वेश्चन कहता वट टाइप ऑफ द अकाउंट इज़ अ रीवैल्यूएशन अकाउंट। हाँ जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते किस टाइप का अकाउंट है, रीवैल्यूएशन अकाउंट कहते किस टाइप का अकाउंट है। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके का अकाउंट होंदा, नॉमिनल अकाउंट। सो जो करैक्ट आंसर सीगा सी सीगा। नैक्सट क्वेश्चन द फाइनैंशियल कंपनी डिविडेंड रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग फाइनैंसिंग या फिर इन्वेस्टिंग। कहते जो आप डिविडेंड रिसीव किया दैट मीनस आप कितना कितने इन्वेस्टमेंट की होगी। सो जो करैक्ट आंसर सीगा वो की सीगा बी। नैक्सट वन डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल डिविडेंड रिजल्ट इन, देखो हजे सिर्फ डिक्लेयर किया पे नहीं किया। सो ना तो इनफ्लो होया ना ही आउटफ्लो होया। बहुत सारे बच्चे आउटफ्लो ला के आए होंगे बट हजे डिक्लेयर किया पे नहीं किया। सो देयर इज़ नो कैश इफेक्ट ऑन कैश। जो करैक्ट आंसर सीगा वो की है सी। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कन्वर्जन ऑफ अ डिबेंचर्स इनटू अ शेयर्स। हाँ जी, डिबेंचर्स को आप शेयर्स कन्वर्ट कर लिया दैट मीनस फ्लो ऑफ फंड, कोई फ्लो ऑफ फंड नहीं होया, सिर्फ कन्वर्ट किया। सो करैक्ट आंसर किया बी। आई होप तुसी जो क्वेश्चंस का टोटल किया होगा जोड़े साढ़े करैक्ट आंसर्स ने वधिया स्कोर पढ़िया होगा। कमेंट करके जरूर दसो ताकि आप एनालाइज कर सकीए कि थोड़े एग्जाम्स दे विच जिहड़ी कट ऑफ कित्थे तक जाऊगी। थैंक्स सब्सक्राइब फॉर अ मोर कॉमर्स लेक्चर पेपर्स। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।